Hello, namaskar to all of you. Today we are going to discuss that is the news from the space technology. That is the first asteroid. First asteroid samples land on the Earth. So, what is the news first? We will see. That is the first news. This is NASA first asteroid sample has landed. Here the asteroid and the sample of the asteroid that has landed. So NASA, that is the mission that is called OSIRIS-REx, full name that is the Origin Spectral Interpretation Resource Identification and Security Regolith Explorer. So that is the mission that 2016 that was sent to study the asteroid, and from the with sample के साथ यह asteroid 24 सितंबर 2023 को धरती पे लौट गया. So then the scientist will study the sample, then the result will published, then we will see in the that video. So it is landed in the 27 September 2023 at target area, that is the Utah test, defense Utah test. So in this news, this is the current affairs news. Here we are going to discuss that what first we are going to discuss that is what is the asteroid. Asteroid क्या होता है, how many types of the asteroid, clear, and this mission that is the OSIRIS-REx mission, OSIRIS-REx mission, that is a study from the asteroid. This asteroid is called Bennu. So what is the Bennu asteroid? Clear, what is the Bennu asteroid and why this mission is important, why it is called the first asteroid sample? Is it the first asteroid sample that landed on the earth, as like the China Chang'e mission on the moon that successfully sample return mission? Our Chandrayaan 3 is not sample return mission. This is the only rover and lander mission without orbiter. But Chandrayaan 2 is the lander, rover and orbiter. But Chandrayaan 1 is the only orbiter mission. So in that way, the asteroid OSIRIS-REx is the what? Is the asteroid sample return mission. Clear. So this is the picture that is from the 27 September 2020, 21 September. So that is the return from the what we call here in the Bennu asteroid. सैंपल लिया बेनू एस्ट्रॉइड का और सक्सेसफुली यहाँ पे आ गया. क्लियर. So first we will see what is the asteroid. See, asteroid there is a three types. Here we will see asteroid there is three types. Asteroid is nothing. Asteroid is the like a rocky object orbit the sun, as like we have the eight planet that revolve around the sun. Clear. So asteroid is the same as the planet that revolve around the sun. Only difference, केवल एक अंतर है, that is the smaller than the planet. Smaller than. So that's why sometime it is called the what? Some minor planet also called. Minor planet. Also called sometime also called minor planet. Clear. So it is the smaller object. According to NASA, that is the 994383 known asteroid and remnant the form solar system 4.6, and that is the formation of the asteroid. जब asteroid बना था उसी समय हमारा सोलर सिस्टम भी बना था. सो इफ वी स्टडी द एस्ट्रॉइड देन वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट, वी कैन ऑल्सो हैव नॉलेज रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम. अब यहाँ पे देखते हैं. सी एस्ट्रॉइड देयर आर थ्री टाइप्स. देखिए एस्ट्रॉइड तीन टाइप के होते हैं. पहला टाइप एस्ट्रॉइड वह एस्ट्रॉइड दैट इज यू नो वेरी वेल, एस्ट्रॉइड बेल्ट में होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं. So that is called asteroid. Second type of asteroid is called Trojan. Trojan asteroid that is not defined orbit. इनके पास कोई अपना ऑर्बिट नहीं होता. एज लाइक एस्ट्रॉइड के पास अपना ऑर्बिट होता है, डिफाइंड ऑर्बिट होता है. जैसे हमारे अर्थ के पास ऑर्बिट है, हमारे और प्लानिट है, वीनस के पास ऑर्बिट है, मरकरी के पास ऑर्बिट है. इनके पास कोई ऑर्बिट नहीं होता.
क्लियर, टॉर्जन के पास, बट दे शेयर द ऑर्बिट ऑफ लार्जर प्लैनेट, शेयर द ऑर्बिट ऑफ लार्जर प्लैनेट मींस अर्थ का टॉर्जन होगा जो अर्थ के ऑर्बिट को शेयर करेगा, जुपिटर का टॉर्जन होगा तो जुपिटर के ऑर्बिट को टॉर्बिट करेगा। एज लाइक टॉर्जन को जैसे लूसी मिशन, फर्स्ट टाइम लूसी मिशन दैट सेंड बाय द नासा टू स्टडी द जुपिटर टॉर्जन, सो याद रखिएगा, है ना, जुपिटर टॉर्जन, क्लियर। सो दैट इज द एस्ट्रॉयड एंड टॉर्जन। एंड थर्ड टाइप इज कॉल्ड द नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, NEA, दैट इज द वेरी डेंजरस, बिकॉज क्यों, कभी कभी ये अर्थ पे गिर जाते हैं और ये बहुत बड़ा क्रेटर वगैरह बना देते हैं, जैसे हमारा महाराष्ट्र में है। सो दैट इज द वेरी डेंजरस टू द अर्थ, सो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉयड। सो दैट वाई साइंटिस्ट ऑल्सो देखते रहते हैं कि कहीं कोई नियर अर्थ एस्ट्रॉयड तो नहीं आ रहा है। सो दैट इज द सेकेंड ग्रुप टॉर्जन, थर्ड ग्रुप नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। अब क्वेश्चन एराइज हियर, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बेनू इज विच टाइप ऑफ द एस्ट्रॉयड? बेनू इज द NEA, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। तो इसीलिए इसका स्टडी किया गया और सैंपल लाया गया वहां से, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सी हियर, दैट इज द पिक्चर, दिस इज द एस्ट्रॉयड, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप दैट द अर्थ, इसमें भी कई रेमिनेंट, कई रॉकी ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं। मरकरी में है टॉर्जन होंगे, वीनस टॉर्जन होंगे, टार्जन होंगे, अर्थ टॉर्जन होंगे। अभी जो भेजा गया है दैट इज द जुपिटर टॉर्जन को स्टडी के लिए भेजा गया लूसी मिशन, लूसी मिशन। और जो एस्ट्रॉयड होते हैं जो अर्थ के नियर होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, और दैट इज द बेनू इज विच टाइप ऑफ द एस्ट्रॉयड, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, दैट इज द एस्ट्रॉयड ओसिरियस रेक्स मिशन 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया, एंड 22 सितंबर 2020 दे स्लिंग पोस्ट पास्ट अर्थ, मीन्स अर्थ के ऑर्बिट से उसको स्लिंग पोस्ट करके वहां पे पहुंच, बिकॉज दिस एस्ट्रॉयड इज द ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। दिस इज द नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, दैट इज समटाइम कॉल्ड द अर्थ क्रूसर ऑल्सो। सो इसका सैंपल लेने के लिए पहले क्या होता है, पहले इसके स्पीड को मैच किया जाएगा, जैसे घूम रहा इसके साथ ये मिशन घूमेगा, मिशन घूमेगा, इसके स्पीड को मैच करेगा, देन दैट हैव ए रोबोटिक आर्म दैट इज कॉल्ड टैक्सन। यहाँ पे नहीं है टैक्सन, इस न्यूज में नहीं था, मैं बता दे रहा हूँ। मीन्स टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म। तो 3 सितंबर 2018 को वह एस्ट्रॉयड बेनू पे पहुंच गए, ठीक। उसके बाद 2 साल लगे उनको एस्ट्रॉयड के स्पीड को मैच करने में, और 20 अक्टूबर 2020 को वो टच किए और वहां से वह सैंपल ले लिया, क्लियर। सैंपल लेने के बाद 10 मई 2021 को वो अर्थ के लिए चल दिए सैंपल लिखे, और फाइनली 27 सितंबर 2023 दैट लैंडेड ऑन द अर्थ, लैंडेड ऑन द अर्थ, क्लियर। सो द क्वेश्चन नेक्स्ट अराइज हियर दैट व्हाई डू साइंटिस्ट स्टडी द एस्ट्रॉयड? साइंटिस्ट क्यों एस्ट्रॉयड को जानकारी लेना चाहते हैं? व्हाई डू साइंटिस्ट स्टडी एस्ट्रॉयड? So you know very well asteroid as like planet, because as like in our solar system में और जो planet है, ग्रह है, उनका चक्कर भी उसी तरह लगाते हैं, क्लियर, उन्हीं तरह लगाते हैं। सो द साइंटिस्ट स्टडी द एस्ट्रॉयड टू लुक इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लानेट एंड द सन। चूंकि अगर एस्ट्रॉयड को स्टडी कर लेते हैं, if we study the asteroid then we can extrapolate। अब इसी स्टडी से हम जान सकते हैं कि क्यों, कैसे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, बिकॉज टू लुक द एस्ट्रॉयड माइट बी पोटेंशियली हैजर्डस, उसको रोका जा सकता है, इसलिए फर्स्ट प्लानेटरी डिफेंस सिस्टम डार्ट हम लोग सक्सेसफुली लॉन्च कर दिए, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है तो उसको हम डेविएट कर देंगे, क्लियर, अर्थ से कहीं और डेविएट कर देंगे। सो इन दिस वे दैट इज द बेनू को, बिकॉज द ड्रास्टिक चेंज सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओवर द बिलियंस ईयर, उनका फॉर्मेशन बिलियंस ईयर्स पहले हुआ, एज लाइक 4.6 बिलियंस अर्थ का माना जाता है सोलर सिस्टम आया है। सो
अगर उसको हम स्टडी कर लेते हैं देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर द सोलर सिस्टम के बारे में फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज, दैट इज ऑल अबाउट द न्यूज। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।